Good morning, everyone. Welcome to the International Summit at IIT Bombay, where global leaders, innovators, and thinkers come together to exchange the ideas, foster collaboration, and shape the future. We are delighted to have you with us and look forward to an insightful and inspiring summit. It's wonderful to have you all with us today for this special session, and we truly appreciate your presence. We look forward to an engaging and insightful discussion ahead. To begin, it's my pleasure to introduce our moderator for today's session. Please join me in welcoming Ms. Chinmaya Tripathi. Chinmaya is currently the head of brand marketing at Divya Drishti Digital and business owner at Sociopillar, where she works on brand strategy and personal brand management. Her experience spans brand management, content strategy, social media marketing, and influencer marketing. Known for her clear communication and structured approach, she brings focus, insight, and flow to today's discussion. Please give a warm round of applause for Chinmaya Tripathi. Now it's my honor to introduce our speaker for today's session. We are delighted to have with us Mr. Anirban Mukherji, the founder and CEO of miniOrange. Anirban sir brings over 2 decades of experience in enterprise technology and cybersecurity. Before founding miniOrange, he worked in senior roles at RSA Security and IBM, where he contributed to design and scaling of enterprise-grade security systems. In 2012, he founded miniOrange with a vision to build secure and scalable identity and access management solutions, which are today used by organizations across the globe. Through his journey across large enterprises and entrepreneurship, he has gained deep insights into building global cybersecurity products. And today, he will be sharing practical learnings from building and scaling a global product company. In terms of education, he completed his Bachelor of Engineering in Computer Science from MBM College of Engineering and later pursued Advanced Security Training at Boston University. Please give a warm round of applause for Mr. Anirban Mukherji. Chinmaya, over to you to take the discussion forward. Very warm welcome, sir. So, let's begin with the questions. So, my first question to you is, before miniOrange and leadership roles, who were you as a professional at the start of your journey? Good morning, everybody. So she asked about the start of my journey. So start happened in 74 when I was born. So start, the reason she's talked about start, सब अलग-अलग जगह से start होते हैं. I've heard कि where you're born, which family you're born into, that plays a big role into your entire career. So you told me that you were born in a family in Uttarakhand. That set your path a little bit, and then it's your choices. So the second thing which is important for your start is your schooling. School कहाँ से किया? School का medium क्या था? अंग्रेजी था, हिंदी था, मराठी था, क्या था? उसके हिसाब से आपका. Then it depends on how, what your choices were, whether you took science, arts, commerce, 11, 12 किसने किया. उसके बाद engineering किया कि medical किया, or you chose some other passion that you followed. And then I think you're interested in where, after my college, where I started. But the start actually happens much, much before then. बहुत पहले हो जाता है. कौन सी family में हो, family का direction क्या है, खासकर your parents. Majority of my, so you will see that in your class also, you have a lot of, say, I was talking to Vasu and he was saying that उसकी class में 150 लोग हैं, 150 बच्चे हैं, chemical में है वो, IIT में. तो उन 150 बच्चों में कुछ बच्चे एकेडमिकली बेटर कर रहे होंगे, कुछ बच्चे कम कर रहे होंगे. तो क्यों होता है वो? कहाँ से शुरू करते? पेरेंट्स कौन है, उससे शुरू होता है. My mom was a staunch believer in education. She was an English teacher. She pushed to put me in St. Xavier's, Jaipur. I am from Jaipur. So St. Xavier's is a very good school. But मेरे दादाजी बोलते थे यार पैसे बचाने चाहिए,
इसको सरकारी स्कूल में डालो क्योंकि सरकारी स्कूल की फीस 1 रुपया है. It was an important consideration. And my father was like, आप लोग डिसाइड कर लो. My mom was like, नहीं, ये Xavier's में ही जाएगा. Because she was a recipient of a good education in Patna. She was from Bihar. So she put me in St. Xavier's. That had a huge impact throughout my career. वो 12 साल जो मैंने जिस स्कूल में बिताए, उस स्कूल का जितनी तारीफ करो कम है. मतलब बड़े बड़े मैदान हैं और बहुत सारे, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी करने के लिए, स्पोर्ट्स एकेडमिक्स, प्लेज, डांसिंग, म्यूजिक, सब कुछ ऑल अराउंड डेवलपमेंट कर दिया उसने मेरा 12 साल में. उससे मेरे करियर पे बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा. सो फर्स्ट माई मॉम, देन माई स्कूल. उसके बाद कॉलेज गए तो Xavier's was a very modern school. मतलब फर्स्ट ग्रेड से 12th ग्रेड तक वेरी मॉडर्न स्कूल इन जयपुर. एंड देन फाइनेंस वर ऑलवेज अ कंस्ट्रेंट. उस समय व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू कॉलेज, इट वाज 92 to 94. आई टेल यू व्हाई 92 to 94. 12th के बाद मेरे को एडमिशन नहीं मिला था कहीं भी, इसलिए 2 बार ट्राई करता रहा कि कहीं IIT में हो जाए. IIT तो दिमाग में ही नहीं घुसता था. IIT एंट्रेंस वाज वेरी हार्ड फॉर मी. सो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में घुसा मैं किसी तरह. एंड प्री इंजीनियरिंग टेस्ट करके एक कॉलेज था, MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में, वहाँ ज्वाइन किया मैंने. दैट वाज अ वेरी डिफरेंट कॉलेज. कास्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट देयर. कौन राजपूत है, कौन ब्राह्मण है, कौन SC है, कौन ST है. एंड कमिंग फ्रॉम Xavier's, इट वाज लाइक अ नाइटमेयर टू गेट इन्वॉल्व, गेट इनटू दैट. और फर्स्ट ईयर में, एज यू ऑल नो, आई होप यू आर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. आर यू? फर्स्ट ईयर में वो कैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अरे कितना मुश्किल है वो पास करना. और मेरे फ्रेंड्स बोलते रहते थे मैकेनिकल और सिविल वाले, देख इस एंगल से देख, इस एंगल. मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, मुझे वो पढ़ा दो बस. सो फाइनली फर्स्ट ईयर का वो एग्जाम हुआ, मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या लिखा मैंने. आई वॉज डैम श्योर कि मैं फेल हो गया हूँ. पर जब मार्क्स आए तो मुझे पास कर दिया. मुझे लगता है कि वो किसी उस प्रोफेसर ने तो सोचा होगा कि बेचारा वैसे भी मैकेनिकल का है नहीं, इसको पास कर देते हैं, नहीं तो अगले साल इसको फिर बढ़ाना पड़ेगा. तो पास कर दिया उसने मुझे. 35 या 38 नंबर होते थे जो भी पास मार्क्स. एंड आई वेंट टू द सेकेंड ईयर में फाइनली इट वॉज कंप्यूटर साइंस. एंड कंप्यूटर साइंस में मेरा थोड़ा बहुत दिमाग चलता था. आई लाइक्ड डूइंग कंप्यूटर साइंस, आई लाइक डूइंग प्रोग्रामिंग. तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स सब करना शुरू किया. एंड आई एक्सेल्ड बिकॉज आई लाइक्ड मैथ. सो अब मुझे समझ में आया कि जिन का ब्रेन इज वायर्ड फॉर मैथ, उनको कंप्यूटर साइंस और ये सब चीज़ें चुननी चाहिए. मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स. जिनका ब्रेन इज वायर्ड फॉर मैथ. आप लोगों को समझता है ना ब्रेन इज वायर्ड फॉर मैथ क्या होता है? जो भी स्टूडेंट होगा सब समझता है. तो ब्रेन अगर वायर्ड फॉर मैथ है तो आप बहुत अच्छा करोगे उस फील्ड में. पर अगर आपका ब्रेन वायर्ड नहीं है, जैसे मेरा ब्रेन वायर्ड इतना नहीं था, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, मेहनत कर करके हम सब अच्छा कर लेते हैं, चाहे कोई भी फील्ड में डाल दो. पहले इंजीनियरिंग कर लें उसके बाद सोचेंगे, वो वाला है. तो आई डिड ओके. एंड देन उस समय कैंपस में ज़्यादा कंपनीज नहीं आती थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 98, सो 27 years अगो. तो हमारे कॉलेज में तो और भी रिमोट कॉलेज था. इट्स नॉट लाइक बॉम्बे की इतनी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है बॉम्बे में. कोई ना कोई कंपनी आ जाएगी. टेकफेस्ट हो रहा है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे आए हैं सुबह उठ के, इट मीन्स you have some initiative in you. That's fantastic. तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता था. जोधपुर is not even the capital of Rajasthan. It's a different city. तो वहाँ कोई कंपनी नहीं आती थी. भूले बिसरे 18 जनों को ले लिया. और वो इसलिए लिया क्योंकि उस समय Y2K, I don't know whether you know what Y2K was. Tell me what it was. 90s वन का जो हमारा ईयर था 199 हो गया था, और अगर वो 0 हो जाता तो फिर टोटली 0 है. पहले क्या होता था, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वालों जब लिखना शुरू किया तो 2 ही डिजिट रखते थे डेट स्टोर करने के लिए, 4 नहीं रखते थे. तो 00 इज लेस देन 99. तो हम सबको हायर किया गया वो स्विच करने के लिए, लाखों कोड में सर्च एंड रिप्लेस करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को. हमें पता नहीं था ये. हमने ज्वाइन कर लिया लार्सन टू. वी वर वेरी हैप्पी. अरे वाह, बॉम्बे जाने का मौका मिल रहा है, अच्छी सी बस लेने आ रही है. पवई में ऑफिस था. सो वी वर वेरी हैप्पी. दैट्स हाउ माय करियर स्टार्टेड. बाय चांस आई वाज पिक्ड फ्रॉम राजस्थान
and brought into Mumbai. And बहुत अच्छा strategy था. They would provide accommodation. They would provide buses. And यहाँ पे आगे कैफेटेरिया में खाना मिलता था पवई में. तो I thought, वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है. और then we were a batch of 300. उस समय भर भर के batches. Unfortunately for you guys, I don't know whether that will be true. Is anybody a final year student here? You are a final year student. So how is the campus placement going on? Look. Which college are you from? Odisha. So it's a little tough right now. उस समय ऐसा tough नहीं था. My batch had 300 kids hired in. And मेरे एक महीने बाद एक और 300 का बैच आया. उसके एक और 3. मतलब I was in that. मतलब placement was easy. But where placement is easy, making it is very hard. यहाँ पे करीब अभी 100 लोग बैठे हुए होंगे. Now, we had a training program for 3 months. 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम था. 300 जनों के साथ बैठे हो आप क्लास में. How do you make sure? और उस समय जावा के प्रोजेक्ट्स बहुत कम थे. How do you make sure कि 300 में से आपको नंबर मिल जाएगा जावा के प्रोजेक्ट में? Tell me. अगर मुझे यहाँ पे किसी को जावा का प्रोजेक्ट और बाकी सबको Y2K का प्रोजेक्ट में डालना हो तो मैं कैसे चूज करूंगा? बताओ. हाँ, प्रोजेक्ट स्किल्स किसके पास टाइम है? 300 जनों का इतने जने बैठे हैं, किसके मेरे पास टाइम है सोचने का तुम सबके से इंट्रोड्यूस करूं मैं? तुम मुझे इंट्रोडक्शन दो अपना. वो भूल गए वो धोनी वाली मूवी. प्लेन में क्या हुआ था? लड़की क्या बोली? उससे साइन करवा के ले आओ. आप कौन है? फिर धोनी ने क्या बोला? मैंने कुछ किया ही नहीं है जिसे आप याद रख सको. तो आप क्यों याद रखोगे मुझे? बोला था कि नहीं? तो मैं क्यों याद रखूं आप लोगों को? मेरे पास टाइम नहीं है. मैं तो बताओ जल्दी से. अभी मेरे पास 5 मिनट का इंटरेक्शन हुआ. मुझे 2 जनों को डालना है जावा के प्रोजेक्ट में और बाकी सब जाएंगे Y2K में जहाँ टेक्स्ट सर्च रिप्लेस होगा. तो मैं किसको डालूंगा आप में से? बताइए फटाफट. हाँ, क्यों रैंडम चूज करूंगा यार? रैंडम चूज करके कोई कंपनी बनती है क्या? कोई और एल्गोरिथम बनाओ. रैंडम भी चूज कर सकते हैं. हम सही बात है, रैंडम चूज कर सकते हैं. बट हो गया वो एप्टीट्यूड हो गया. 5 मिनट में हो गया. He answered one of the questions and he spoke. Those are my 2 options. समझ गए? That's exactly what I did. 300 जने थे. अनकूल लगता था, बस सामने जाके बैठ गया मैं. और जो भी बंदा आता था बात करने के लिए भर भर के क्वेश्चन पूछता था मुझसे बस. That's all I did. At the end of it, every speaker, every guest, every guy who came to teach me, he knew कि ये बंदा कौन है. क्योंकि जब तक मेरे को समझ नहीं आता था तो मैं आगे नहीं बढ़ने देता था क्लास को पूरी. That's all I did. अब क्या हुआ? इतनी सारी पंचायत करी मैंने. 3 महीने बाद मुझे फिर भी Y2K में डाल दिया. एक ही बंदा था. एक ही बंदे की नीड थी. He was a very smart guy. He was also looking at me. He also came in the front. He started asking questions. He was very smart. उसको मिला जावा का प्रोजेक्ट. वो आया पवाई. हम सब गए वाशी. Fortunately, वो बंदा हो गया, वो चला गया. Who was the number 2 choice? I was. समय आ गया कैसे अपॉर्चुनिटी पकड़ी जाती है? ऐसे पकड़ी जाती है. जो डम्बो देखो, आप लोग वैसे ही बहुत स्मार्ट हैं. कैसे स्मार्ट हैं? आप आज की सुबह यहाँ उठ के आ गए. आपके काफी सारे क्लासमेट्स भी हैं. क्या कर रहे हैं वो? समझ गए? तो आपने डिफरेंस पैदा कर लिया. अब यहाँ पे भी बैठे मत रहो, डिफरेंस पैदा करो हर मिनट में. एक रिपोर्टर ने वो तो उसमें एक रील में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन जो थे उनको बिल गेट्स थे. तो उनको एक रिपोर्टर ने पूछा कि यू आर वेरी सक्सेसफुल एट अ वेरी यंग एज. तो कैसे सक्सेस मिली ऐसी इतनी? उसने अपनी जेब से चेकबुक निकाला और बोला कि ब्लैंक चेक है, ले ले. तो रिपोर्टर वाज लाइक व्हाट, ये क्या हो रहा है? उसने वापस ले लिया. उसने बोला ये मिस्टेक मैं नहीं करता. जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं लपक के ले लेता हूँ और तुमने मिस कर दिया. तो सारी अपॉर्चुनिटी लाइफ में भर भर के भगवान अपॉर्चुनिटी देगा तुम्हें. तुम अगर उसमें सो रहे हो तो नहीं चलेगा. जो सबसे स्मार्ट होते हैं वो लपक के ले लेते हैं. और जो जितनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ना, जो सारे स्मार्ट लोगों को पता होगी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 10-15 जने 20 जने 100 जने उसके लिए फाइट कर रहे होंगे.
सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत तेज़ी से जाती है, लपक के पकड़ना होता है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू फाइट विद अदर्स, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. Amazing. That was really, I mean, amazing. Okay, so I just have one question. That was there a moment where you felt unsure about your direction and that one belief you had early on that later completely changed? So to answer that question, the question is कि where I felt unsure. I don't know many of you, I'm sure you had many options sitting anywhere, but you chose to sit here. I don't think you know who I am. I have generally what I am known for. Well, when I was in school in St. Xavier's, I was known to be a swimmer and a national level swimmer. So I have many state championships under my name in Rajasthan, and then I was known as a swimmer. Now I'm known as the founder of miniOrange. So miniOrange क्या है? एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो 13 साल पहले पुणे में स्टार्ट करी थी 4 जनों से. आज वो बढ़ के 4 से 750 लोगों की हो गई है. एंड वी हैव नाउ वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स. वर्ल्ड वाइड का मतलब अबाउट 60 कंट्रीज में 25,000 customers we have. And so that is what I'm known for. Now, right now, I'm the one who's leading the company. मेरे फैमिली में बहुत पहले दादाजी ने बिजनेस किया था 60s में, 1960s में. He was into he had a medical shop. उसके बाद दादाजी से मेरे को ऐसी बात नहीं हुई कि बिजनेस कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं. माई फादर वॉज इन पुलिस इन राजस्थान, तो वो उनको बिजनेस का कुछ आता पता नहीं है. मुझे कोई बताने वाला कुछ नहीं है कोई कि ये कर लो. टुडे ऑल्सो आई ऑल्सो हैड अ चॉइस whether I should come here or I should do a marketing scrum in my company and allow that. I chose to come here. सही किया गलत किया I don't know. So I'm unsure all the time. So I'll tell you, अभी unsure की बात हो रही है. आपके पास भी काफ़ी सारे डिसीजंस हैं. आपने कोई डिसीजन सोच के आप IIT बॉम्बे के अंदर आ गए आज. When I'm unsure, I debate in my head and I go with my gut feel. और gut feel क्या होता है? धीरे धीरे डेवलप होता है. I'll tell you what I mean with that. And gut feel से कैसे अपने आप को गाइड किया जाता है. So I before starting miniOrange सिक्योरिटी में था, ये निंजेवाड़ी. तो उससे पहले मैं यूएस से आया था. यूएस में 10 साल था. तो यूएस से आया और इंडिया में सेटल होना ही मुश्किल हो रहा था. काम वर्क वाइज आधे से ज़्यादा टाइम कैंटीन में बीत रहा था. क्या होता है, काम तो बड़ा अच्छा होता है, बट द प्रॉब्लम इज कि ऑल द हेडक्वार्टर्स इज इन ऑस्टिन. तो यहाँ पे क्या होता है, सस्ते वाले के लिए काम यहाँ भेज देते हैं. अब हम वहाँ काम करके आए हैं, हमें सस्ते वाले की आदत नहीं है. हमें तो मतलब मेन काम चाहिए, और मेन काम अगर तुम नहीं दोगे तो हम शुरू कर देंगे. हमने शुरू कर दिया तो छीन लिया हमारे से. तो आई वाज अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये तो ठीक नहीं हो रहा. 2.5 साल इसमें ऐसे में चले गए. देन आई थॉट, मेरे 3 दोस्त थे जिन्होंने यूएस के टॉप स्कूल से MBA किया था. शिकागो बूथ, MIT SDM, और एक और था कुछ हार्ट स्कूल ऑफ बिजनेस बर्कली में. तीनों को ईमेल किया कि यार लाइफ के साथ कुछ करते हैं, मज़ा नहीं आएगा ऐसे. सो तीनों में से 2 जनों ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, एक ने किया. तो हमने उसके साथ सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर दी, छोटी सी. सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करना बड़ा हार्ड होता है. वंस यू आर यूज्ड टू गोइंग टू बिग इंस्टीट्यूशन, बिग कंपनीज वेयर एवरीथिंग इज ऑल सेट, 3 to 4 lakh employees, 1+ lakh employees I think in India itself. वहाँ से छोड़ के स्टार्ट कर देते हैं का मतलब क्या, एक छोटा सा ऑफिस लो, 4 जने हायर करो. जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वही बोल रहे हैं कि सर दूसरे लोग कौन है, आपने तो बोर्ड ही नहीं लगवाया अभी तक. It's very hard to go through all that. Then I imagined यार वहाँ US में एक VP of Product Management, ही न्यू कि मैं आई वाज इन टर्मोइल. तो उसने मुझे मैसेज भेजा कि यहाँ आ जा, आइडेंटिटी एक्सेस का प्रोडक्ट मैनेजर बना देता हूँ तेरे को, ऑस्टिन आ जा. सो आई इमेजिन माई सेल्फ कि वापस आऊँगा, ऑस्टिन में काम करूँगा, और वहाँ पे वही माहौल होगा. एक ईमेल भेजूँगा, 10 दिन बाद रिप्लाई आएगा, 25 जने बैठेंगे डिसाइड करने के लिए, कोई डिसीजन होगा नहीं, वापस कैंटीन में जाके बैठना पड़ेगा. आई सेड नहीं, वो नहीं कर सकता. 4 जनों की कंपनी सही है, झाड़ू पोछा भी खुद को देखना पड़ रहा है,
अकाउंटिंग भी खुद को देखनी पड़ रही है, वही करेंगे, बट वहाँ नहीं जा सकते वापस. So 2012 October, started my own company with 4 people. So she was talking about whether I was unsure. Of course, every point of my life is insecurity and there's nobody to guide. धीरे धीरे क्या हुआ, वो डिसीजन मेकिंग ऐसे होते गए कि you know how many startups are opening and how many startups remain after 1 year? किसी को स्टैटिस्टिक्स पता है? बताइए. 90%. ये कह रहे हैं मोर देन 90% फेल. ठीक है, ये स्टैटिस्टिक ठीक है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर ये जो बाकी 10% कंपनीज हैं, अगले साल आर दे सेफ? अगेन 90% टेस्ट. उसके अगले साल ऐसे करते करते 13 साल हो गए हैं. 13 years are passed. एंड इंडिया में तो स्टार्टअप्स को स्टार्टअप्स बोलने का ट्रेंड है, चाहे आप $1 billion कंपनी में स्टार्टअप्स ही कहलाते हैं. तो वो 90% टेस्ट, इट्स एक्चुअली ट्रू. हर साल ये टेस्ट होता रहता है आपका कि कितने परसेंट. सो हम लोग कैसे पहुंचे वहाँ उस 90% में, 10% में, उस 10% में कैसे पहुंचे एवरी ईयर फॉर द लास्ट 13 years, गॉड ओनली नोज. बट वो जो डिसीजन लेते गए उससे कॉन्फिडेंस आ गया कि हम जो सोच रहे हैं, जो गट फील फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द राइट थिंग. सो आई हैव बीन अनश्योर अ लॉट. आई एम अनश्योर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई डिबेट इन माई हेड, बट आई हैव डेवलप्ड सम गट फील, and that gut feel tells me to do this. Many of the times it is so hard to do what your gut feel tells you. Gut feel will tell you to go in this direction. 10 लोग नाराज हो जाएंगे. किसके नाराजगी से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है? वेरी गुड. उसके बाद हाँ, जो साथ वाले होते हैं ना, वो नाराज ही रहते हैं 24 घंटे. आप कुछ भी डिसाइड करो. सो वो जो गीता में लिखा है ना अर्जुन और उसका स्टोरी, इट इज ट्रू. आई फेस इट ऑल द टाइम. अभी क्या है, मेरे पेरेंट्स तो, माई मॉम इज नो मोर बट माई फादर इज देयर, एंड वो भी कभी कभी नाराज होते हैं, पर मोस्टली ही इज बिग सपोर्टर ऑफ मी एंड माई एल्डर ब्रदर. बट many of my team members have been with me for 10-12 years. The first 5 में से 3 जने अभी भी हैं. अब अभी भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो सोचते हैं बिल्कुल सेम है. कभी वो बढ़ते बढ़ते 4 जन की कंपनी 750 की हो गई है. तो वो जो आए थे 2013 में, वो 12-13 में आप जैसे ही थे, वो उनके साथ दे हैव अ टीम ऑफ 100-150 अंडर देम एंड दे आर वेरी यंग. बट इतने यंग एज में अगर बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल जाती है तो कैसा होता है? काफ़ी वजह सर में चढ़ जाते हैं, काफ़ी जने फ्रीडम बनाने की कोशिश करते हैं, और आप सोचते हो इसके साथ कंपनी चलाई है, मतलब शुरू करी थी, इसको आप मतलब ज़्यादा भी गुस्सा नहीं कर सकते हो और इसको अलाउ भी नहीं कर सकते हो ये सब बदमाशी करने की. 24 घंटे चलता रहता है ये सब. तो जो गीता में लिखा है वो बिल्कुल सही है. अर्जुन हैज़ टू किल हिज रिलेटिव्स at some point if needed. If you're prepared to do that, like your gut feel will tell you. Your gut feel will tell you that. Will you be able to do it? मुश्किल रहेगा. But जो कर लेगा उसको next level of success मिल जाएगी. When you're successful, what happens in your life? मतलब reward कैसे करता है वो God? और बड़ा चैलेंज देंगे. इसको मारा है, अब उसको मार. वही करते करते 750 में पहुंच गए हम लोग. ऑल इंटरनल, नॉट कि कस्टमर कैसे बनाएंगे, पहला कस्टमर कैसे बनता है. उससे ज़्यादा ये मुश्किल रहता है मुझे. मोस्टली इन इंडिया इट्स ऑल अबाउट ऑपरेशंस. ऑपरेशंस बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑपरेशंस में लोगों से डील करना पड़ता है. और दिस इज इंडिया सेंचुरी, तो सब एवरीवन थिंक्स दे आर स्पेशल. तो सबके फीलिंग्स, सबके ईच वन ऑफ यू, एंड दे आर लुकिंग अप टू योर सीनियर, एंड so it's a very hard thing to do. So but we have been successful for 13 years, and I'm very positive we will be successful in the future as well if we do the right thing. So Okay, so I have the next question. What problem did you see in the security or identify space that led to the creation and growth of miniOrange? I told you, I gave the answer already. I came from US, where US is a big meritocratic system, not a caste based system. Meritocratic. जो मेरिटोक्रेसी क्या होती है? जो मेरिटोरियस है वो ऊपर जाए. बट मेरिटोक्रेसी ये भी होती है कि जो मेरिटोरियस नहीं है वो नीचे जाए. कौन भेजेगा नीचे? आप ही का काम है वो करना.
सब मेरिटोक्रेसी वो होती है। तो वहां देख के आए थे कि मेहनत करते गए तो बहुत अच्छे चले गए। यहाँ पे आए तो देखा नहीं, इंडिया के लिए एक स्पेशल रोल है, अगर आप उस रोल में फिट हो रहे हो तो वो काम आप करोगे। अब वो काम तो मैं 2 घंटे में कर लेता हूँ, बाकी क्या करूँ? कैंटीन में बैठो, मुझे कैंटीन में बैठना नहीं है, मन नहीं कर रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है अंदर से कैंटीन में बैठ के, और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, फ्लैट के दाम मुझे बढ़ रहे हैं, मेरे को काम भी करना है, पर तुम कह रहे हो कि इंडिया के लिए ये रोल है, वो नहीं कर सकते आप। सो वेरी वेरी अनसेटिस्फाइंग वर्किंग फॉर एन एमएनसी इन इंडिया, वेरी वेरी अनसेटिस्फाइंग। यू गाइज मस्ट नो, if it is your first step to go to a global capability center, go, that's fine। अगर तो आपके पास कोई जॉब नहीं है और वहाँ जाना चाहते हो, मिल रही है, बट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यहाँ क्यों आए हैं? कौन से ग्लोबल बैंक्स हैं जो यहाँ इंडिया में आए हैं? आप अपन सबके अकाउंट्स हैं ना, क्या बात कर रहे हो? तो यहाँ क्यों आया वो? हमारा अकाउंट किस बैंक में है? SBI, HDFC, एक्सिस। अपने देश में क्यों नहीं कर रहा? वहां उनका बिजनेस मॉडल समझ नहीं रहा है, वहां लोग ही नहीं है टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करने के लिए, और लॉज पे लॉज बनाए जा रहे हैं। वो ऐसे लॉज बना रहे हैं जो लोगों को हायर करना मुश्किल है, प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करना मुश्किल है। चलो इंडिया चलते हैं। बट वो अगर इंडिया चल रहे हैं तो मालिक इंडिया आ रहा है क्या? मालिक तो वहीं बैठा हुआ है। तो जो सबसे कूल और सबसे कोर काम होगा वो कहाँ जाएगा? आपको आगे बताएंगे वो। वही चक्कर है, ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आ रहे हैं, अगर आपको जॉब की जरूरत है, देयर आर गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स, और आर दे इट? नो, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आर हियर फॉर अ रीजन, एंड दे हैव नाउ, उनको ये आउटसोर्सिंग कहते थे हमारे जमाने में, योर जॉब हैज बीन बैंगलोर्ड कहते थे। अब क्या है, इंडियंस इतने स्मार्ट और इतने पुशी हो गए हैं कि इनको हमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बोलना ही पड़ रहा है कि हम पूरे ग्लोब की कैपेबिलिटी यहां से रन करेंगे। बट फिर भी कोर काम एंड आईपी किसके पास है? अगर कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका आईपी कहाँ है? फॉरेन कंट्री में रहेगा। सो उसका ध्यान रखना चाहिए, इसका समझ में आना चाहिए इसका। सो इट विल हैव एन इम्पैक्ट इन योर करियर। सो आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन। So, my question was that what did you see in the security or identify space that led to the creation of हाँ, why I create miniOrange is because I was unfulfilled। आई मीन मैं बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, और मुझे लगा कि अभी ऐसे ऐसे लाइफ कट जाएगी, 10-12 साल कट चुके हैं, अभी अगर मैं वो करता रहूंगा तो 10-12 साल और कट जाएंगे। ऑस्टिन बुला रहा है, ऑस्टिन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई डोंट नो वेदर यू हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर मल्टीपल टाइम्स, ब्यूटीफुल प्लेस, बड़े बड़े घर हैं, टेक्सास में हैं, सस्ते से घर हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे कंपनीज हैं, एकदम एनवायरमेंट इज लश ग्रीन, एकदम उदयपुर जैसा है। उदयपुर में लैंड करते हैं ऊपर से, जैसे राजस्थान के बीच में एकदम हरा, वैसा है, पुणे जैसा कंफर्ट में लाइफ बीत जाती। और मुझे नहीं करना था वो, तो मैं क्या कंपनी खोल लेते हैं यार, क्या होगा। उसमें कंपनी के गोल्स भी लिखे मैंने, 2012 अक्टूबर के गोल्स हैं मेरे पास, कि लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में कुछ करके दिखाएंगे जिससे वर्ल्ड को बेनिफिट मिले, और अगर पैसे भी बन गए तो बन गए। इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अभी मैं टीम को दिखाता हूँ कभी, 2012 का ईमेल वो, तो ये लिखा हुआ था गोल में। तो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि अनफुलफिल्ड था वो पूरा। बैंडविड्थ का 10% भी यूटिलाइज नहीं कर सकते ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आपके। आफ्टर अ फ्यू इयर्स, 2-3 घंटे के बाद में सारा काम हो जाता है। तो पूरे दिन बैठ के क्या करें? गप्पे मारे, मस्ती मारे, इतने सारे काम पड़े, इतना ट्रैफिक है बाहर, गंदगी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कल नितिन गडकरी जी बोल के गए यहाँ पे, वो सब काम करना है हमें, करना भी, हमारे फैमिली को ऊपर लेके जाना है हमें, क्यों बैठे रहे हम? तो दूसरा काम करने का। और एवरी इंडियन आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ इन हिज करियर। करियर कितना इंपॉर्टेंट है अब हम सब के लिए, तो वो हमें यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए सब साइड हसल करने में घुस रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज साइड हसल। इज साइड हसल अ गुड थिंग? प्लान ए एंड प्लान बी। अरे प्लान बी जब बना ले तो प्लान ए तो सक्सेसफुल होगा ही नहीं कभी, तुम बैलेंस ही करते रहोगे। प्लान ए इतना बड़ा बनाओ, उसमें घुस जाओ, और प्लान बी रखो ही मत, कि अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं तो गया। तभी प्लान ए सक्सेसफुल होता है।
ये सारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जितने भी दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं सबके साइड हसल चल रहे हैं, कंफर्ट में लाइफ बीत रही, मुझे नहीं करनी थी। So, my next question is that at the beginning, was the market ready or did you have to educate your customers first? I learned something very interesting. एक कंपनी, उससे पहले मैं बॉस्टन में, इट इज ऑल्सो बिग कंपनी. When you're in big company was small at some point, but when you joined, it was a huge company. तो वो huge company जो थी, वो बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाती और बेचती थी. बट व्हेन यू ओपन अ स्टार्टअप, वो आपका माइंडसेट वही होता है क्योंकि आप बड़ी कंपनी से आए हुए होते हो, पर वो बड़ी कंपनीज आपके प्रोडक्ट को खरीदेगी नहीं क्योंकि आपका नाम ही नहीं है. एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल मेकिंग स्मॉलर प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग टू स्मॉलर कस्टमर्स. आपका पहला कस्टमर आप बना रहे हो, आप IBM में बेच चुके हो $1 million का प्रोडक्ट, $10 million का प्रोडक्ट. You have to be comfortable if you're opening a startup to sell for 100 rupees. Are you okay with that? Whether you're or not, you're okay. This is the trajectory. 100 रुपए का कस्टमर आपको ट्रस्ट करेगा पहले, फिर 100 रुपए के 10 कस्टमर ट्रस्ट करेंगे, फिर 500 रुपए के कस्टमर ट्रस्ट करेंगे, फिर 1000 के, फिर 10,000 के, 20,000 के, ऐसे चलता है वो. So, students often ask, what does it take to work in cybersecurity or identify management, and what skills actually matter in this space? It's a very interesting question. I'm a big proponent of cybersecurity. I've been doing software for last 27 years. उसके अंदर 15 साल तो पुणे में ही हो गए मेरे पास, और 10 साल वहाँ पे था बॉस्टन में, और 2 साल पोवाई में. 27 years like that. So, साइबर सिक्योरिटी में भर के अपॉर्चुनिटीज है. अभी सारे नेशंस जो फाइट वॉर में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले अपनी अपनी साइबर सेना से दूसरे के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन करती है. रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, बोथ आर मेकिंग श्योर कि उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो जाए. पहले उनके वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, वो सब करते हैं, और वो डाउन हो जाए, और उसके बाद में एक्चुअल वॉर शुरू होता है. यूक्रेन रशिया वॉर में ऐसा हुआ, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वॉर में हुआ, US ईरान में वैसा होता है, हर जगह वैसा हो रहा है. तो डज इंडिया हैव अ साइबर सेना टुडे? टू सम एक्सटेंट यस, बट इज इट सफिशिएंट? नो, नॉट एट ऑल. इंडिया पाकिस्तान में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और उससे पहले जो हुआ था कारगिल, इंडिया और पाकिस्तान के हैकर्स आर हैकिंग ईच अदर्स साइट्स एंड मेकिंग श्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. बॉम्बे का मैंने सुना है कि एक दिन लाइट चली गई थी और 5-6 घंटे बाद आई थी, कुछ साल पहले की बात है. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है. तो साइबर सेना की जरूरत है, साइबर सेना की जरूरत है टू मेक श्योर टू रिसर्च एंड टू बिकम दोज पीपल हु कैन गो एंड फाइट दिस साइबर वॉर. द अदर थिंग इज क्रिएटिंग साइबर प्रोडक्ट्स. इतने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं पूरी दुनिया में, मैक्सिमम बन रहे हैं US में, इजराइल में, some in Australia, and now also in India. I suggest all of you, if you want to have a very good, successful career, cyber security products, product development, along with AI. And the reason I'm a big proponent of cyber security is because मेरा career 27 साल से cyber security में चल रहा है. अगले 27 साल अगर जिंदा बचा तो यही करता रहूंगा, और फ्लाई कर रहा है मेरा करियर अभी. For few decisions that I took. First cybersecurity, then coming back from US to India, which a lot of very few people do, and not going back, which even fewer people do. और cybersecurity में relentless. पहले हम identity access में करते थे काम, अभी सब कुछ और fields में काम करते हैं. You should research on cybersecurity, but not how to use the tools only. That is very shallow knowledge. Deep में घुसना है. Product बनाते कैसे हैं? कहाँ ये आप लोग जो यहाँ पे आए, फैंटास्टिक. साइबर सिक्योरिटी में आपको पता लग गया, साइबर सिक्योरिटी में बहुत अपॉर्चुनिटी है, जाके रिसर्च करिए. आई कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर, माय टीम कंडक्ट्स, एंड इट इज इन पुणे. 16-17 जैन को है. जो भी आ सकता है आइए, जो ऑनलाइन कर सकता है ऑनलाइन करिए. यू मस्ट फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट ट्रैक्स इन साइबर सिक्योरिटी. अगर शुरू करेंगे ना इसमें, करियर इज गोइंग टू बी ग्लोरियस. इंडिया में साइबर सिक्योरिटी इज अपटिक चल रहा है, क्योंकि साइबर फ्रॉड भी बहुत हो रहा है, तो अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है. साइबर सिक्योरिटी भर गया, और प्लस AI का यूजेज इसमें.
कैसे एआई से कैसे साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स जल्दी बनाए जाते हैं, वो भी एक तरीका है, और एआई को कैसे साइबर सिक्योरिटी में यूज किया जाए टू एनहांस फीचर्स एंड ऑल, वो भी एक। इसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। आई गो वर्ल्ड वाइड इन डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज, यूएस में अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलग बन रहे हैं, मिडिल ईस्ट में। बहुत बहुत मजेदार है। साइबर सिक्योरिटी इज अ फैंटास्टिक करियर ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। 27 years my career is like going like this. So I suggest you, and there are 400 cyber security companies that have popped up, small, medium, smaller, medium, Bangalore, Pune, Gurgaon. Great options for you. इसमें करना चाहिए आपको, बहुत अच्छा भी लगेगा, and it will be a differentiated thing. It's not like any other software development. करियर अच्छा जाने के लिए डोमेन अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, which is vast. कई बार क्या होता है, डन वेरी वेल फॉर द कंट्री, बहुत लोगों को उन्होंने जॉब्स दिए, बट एवरी 8 to 9 months आपके प्रोजेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। किसमें मास्टर बनोगे आप? मास्टर नहीं बनोगे तो सैलरी नहीं बढ़ेगी। इसमें मास्टर बनने की इतनी चीजें पढ़ने को है, मास्टर ही बनते रहोगे आप, सो सैलरी इज रुकेंगे नहीं, स्पेशली आफ्टर 10 years. Huge opportunity for cybersecurity in AI. And in AI, you should not restrict yourself to just know how to use those tools. You must think कि इनमें से कौन सा रैपर मैं खुद बनाऊं, कैसे बनाऊं जिससे इंडियन आर्मी भी उसको यूज कर सके। उनका डेटा तो जाके किसी बाहर विदेश के एलएलएम में नहीं बैठना चाहिए ना, एलएलएम तो इंडिया का है ही नहीं। फिर क्या होगा? चाइना ने एलएलएम कैसे बना लिया? कुछ पॉलिसी चेंजेस की भी जरूरत होती है। मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है, उन्होंने डेटा ट्रेन कैसे किया है उसके बारे में, बट एक चीज मैंने जो सुनी है, चाइना की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है ना, नहीं आने दिया इसको, अंदर नहीं आने दिया, उससे चाइनीज वालों का डेटा वहीं रहा, और वहां जहाँ डेटा था वहां से ट्रेन हो गए वो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया में प्रोटेक्शन पॉलिसीज हैं, पर अभी भी काफी अमेरिकन वेंडर्स आर इन। अभी जाके डीपीडीपी एक्ट पास हुआ है, जिसकी वजह से सारे के सारे सब हिंजेवाड़ी में, पुणे में जमीनें खरीद रहे हैं डेटा सेंटर्स बनाने के लिए, कि इंडियंस का डेटा यहाँ रहे। अब इंडियंस का डेटा यहाँ रहेगा तो हमारा भी एलएलएम बन जाएगा, पर अभी भी नहीं बनेगा, उनका एलएलएम है वो, आप लोगों को बनाना है वो एलएलएम अपने लाइफ टाइम में, और वो बन के रहेगा। क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो अब आत्मनिर्भरता की तरफ जा रही है। Even the Prime Minister said, I was in Delhi 2-3 weeks ago. There was a conference. Every government department, they're looking for cybersecurity products made in India. 400 companies have popped up. इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, अगर मिस नहीं हो जाए, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको। There's a lot going on in your feed. अगर आपने अपनी कंपनी खुद की नहीं बनाई तो आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। कितना चल रहा है? जॉब देने वाले बनो, जॉब पाने वाले मत बनो। आपको पता तो लग गया मैं क्या करता हूं। अब कुछ जॉब, मैं एक जॉब क्रिएटर हूं, मैंने 750 जॉब क्रिएट करी है अभी तक। कुछ जॉब करने वालों का नाम बताओ जो मेरे से ज्यादा फेमस है। हजारों लोग हैं, तो बोल सकते हैं क्या कि मैंने ज्यादा बड़ा काम किया है? ही इज अ मच मोर बिगर जॉब क्रिएटर। अपने फीड को, अपने आप को इन्फ्लुएंस मत करने दो ज्यादा। वो अलग अलग रीजन से फीड बनती है। क्या रीजन से बनी है मैं बता देता हूं कि ये जो एम्प्लॉयज हैं, आई हैव फेल्ट दैट व्हेन आई इफ आई वाज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, इंस्टेड ऑफ pointing fingers at my company, if I had been a very good employee, I could have been the MD of जैसे वो बने हुए हैं, but I didn't, क्यों? I blamed my company कि ये खराब है। Then I went to US and when कुछ भी इधर उधर हुआ, I blamed them. I kept blaming, and then I landed in miniOrange and I could blame no one. And then I had to take ownership for the damn thing. उसके बाद ही मेरी सक्सेस हुई है वापस। ये बकवास चल रहा है बहुत सोशल मीडिया में। जॉब क्रिएटर कोई भी हो सकता है, जॉब क्रिएटर विद इन अ कंपनी भी हो सकता है, जॉब क्रिएटर
एज एन एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ टफ थिंग, एंड इफ यू आर अ सुपर्ब एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी, देयर इज not much difference between that and creating your own company. Prime examples of that, वो उनको 100 million plus सैलरी मिलती है, वो जिस दिन चाहे अपनी खुद की कंपनी बना सकते हैं. क्या वो बना रहे हैं? नहीं बना रहे, क्योंकि उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है वो बेटर है उससे. दे डोंट वांट टू गो रीइन्वेंट द व्हील, वापस से झाड़ू पोछा लगाने की टेक्निक शुरू करो, नहीं करना चाहते वो. इवन is he a first generation entrepreneur? No, his dad started it all, but he's a great entrepreneur, man. 4-5 लोगों की livelihood और पता नहीं कितने जनों का investment चल रहा है उनकी वजह से. So very important point, remember that. Okay, whether you're an employer, you have to be very good at it and blame no one and take ownership for all that stuff. So was there a moment where a wrong decision had serious consequences? Like any yes, in your life? very very important point. इंडिया में किस तरह की कंपनीज बहुत पॉपुलर हैं? सर्विसेज, कॉमर्स, वो कॉमर्स, क्विक कॉमर्स वेरी वेरी पॉपुलर. कंज्यूमर वाले बहुत पॉपुलर हैं. एफएमसीजी बहुत पॉपुलर है. कंज्यूमर जैसे कि डीप टेक कौन कर रहा है? डीप टेक तो कोई खास बहुत पता भी नहीं होगा. डीप टेक वाले डीप टेक करते रह जाते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं. वो आप लोगों को आज से पहले miniOrange का नाम भी पता नहीं होगा. तो डीप टेक वाले करते नहीं है. So any moment where you thought you took a wrong decision or So what we did when I started the company, इतनी सारी सर्विसेज कंपनी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा अगर मैं ये कंपनी खोल के बैठ जाऊंगा. सैलरी तो आएगी नहीं. So then I thought, oh, let me do services. I started doing services for a company in the US, and 1 or 2 years it was fine. Then the management changed, and हम क्या करते थे, सर्विस में जो भी काम करते थे उसको लेके हम अपने साइट पे लिख देते थे कि हमने ये किया, जिससे कि उसके जैसे दूसरे कस्टमर भी मिले. It should be a common practice, but they got offended कि ये तो तुम चोरी कर रहे हो. They filed a case against us in the US. I had 3 more co-founders. They left, resigned. The mistake was very simple. सर्विसेज जब करने जाते हो आप, तो प्रोडक्ट पे काम करना या दूसरे उस चीज को एडवर्टाइज करना इज नॉट अलाउड. ह्यूज मिस्टेक. जो आपसे सर्विसेज करवा रहा है वो सब कुछ ओन करता है. नाउ द इशू इज कि मैंने ऐसे किया ही क्यों? क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा. मैंने कहा सर्विसेज शुरू कर देता हूं और धीरे धीरे प्रोडक्ट बनाऊंगा. नो, you have to take, if you are into building your own thing, you have to take a plunge. That plunge for good companies will last only 6 months. अपने माँ के पास जाके रहो, वो वैसे ही आपको इतने से पाल रहे हैं, वो 6 महीने और पाल लेंगे आपको. खर्चा 0 करो, वहां बैठ के बनाओ, छोटा प्रोडक्ट बनाओ, एक कस्टमर पकड़ो. जब वो धीरे धीरे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे ना, आपका खर्चा निकल जाएगा. बट शॉर्टकट मत लो. मुझे ये पता नहीं था उस समय. इन 2012 I was so afraid that I did take a shortcut in services. So shortcut नहीं लेना है. That was my learning. प्लंज करना है तो कर लो, और डर लग रहा है तो थोड़ी दिन मत करो. कोई रेस थोड़ी चल रही है कि तुम्हारे कॉलीग ने कर लिया तो तुम्हें आज ही करना है. तुम सीखते रहो. There are many examples of companies of 50 साल के बाद कंपनी शुरू करी, बिलियनर्स हैं, कर सकते हैं. There is no difference between a good employee and an entrepreneur anyway. So whatever you have the capacity to do, you should do it at your own pace. And if you take the right decisions, no shortcuts. And by the way, people who are working hard, people who work hard, they do not need to take shortcuts. ये चीज समझते समझते मैं 51 का हो गया हूँ अभी. आपको मैं समझा जाता हूँ, आप लोग बहुत मेहनती हैं, आपको शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं है, बट पेशेंट रहने की जरूरत है. how do you personally deal with high stakes pressure when security and customers are involved? It happens, it's a daily thing. I've a built-in culture in miniOrange. We meet every morning at 9 or 9:30. We call it Scrum. And it is very different from other companies. The kind of culture we have built, it is we are utilizing remember my first problem, no satisfaction, and my bandwidth was not being utilized.
My teams can hardly say that their bandwidth is not being utilized today. रोज की माता बच्ची करने को रेडी है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है इन इंडिया. एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटायर इकोसिस्टम इज गियर टुवर्ड्स सर्विसेज. थोड़ा काम, थोड़ा मस्ती, ये सब का गियरिंग अप है. हार्डकोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट 99.99% अप टाइम, बहुत मुश्किल होता है सब करना. तो आपको मजा आना चाहिए सब करने में. तो धीरे धीरे कल्चर ऐसा किया कि उस तरह के लोग अट्रैक्ट हो गए और धीरे धीरे वो चल रहा है. रोज का है ये सब. So, how do you build a culture in a security focused company where accountability is high but innovation isn't still? The accountability and innovation, I mean, the one thing that we have done, we are a medium sized company right now. With one thing we do is I try not to save any money. जितने पैसे आज बनाए, इस साल बनाए, अगले साल पूरे को खर्च करने का प्लान करते हैं हम. इनोवेशन हो रहा है. 2/3 of the company is innovating, and 1/3 of the company is needed for supporting the existing revenue. And what qualities do you look when you are hiring at miniOrange? No hiring is perfect. आजकल तो इंटरव्यूज में भी वो एआई के प्रॉम्प्ट्स कर करके सारे आंसर दिख जाते हैं. आई बिलीव इन ट्राइंग आउट, मीनिंग आ जाओ, साथ में काम करेंगे. You cannot hide anything from your relatives, friends, parents, brothers and sisters, right? Because they live with you. When you live with us during the daytime, you'll not be able to hide anything. We'll know what you are. So we are very easy with hiring and very, very strict with firing, performance based. In fact, the entire reason for this talk or any talk that you go to or any education that you're going through is to make you more and more confident about your own abilities. कुछ आपको छुपने की जरूरत नहीं. अपने एबिलिटी के हिसाब से आप धीरे धीरे करते रहो, शॉर्टकट मत लो. मैं 12th में IIT PET के लिए ट्राई किया, उसके बाद 1 साल ड्रॉप किया, फिर 3rd टाइम ही हुआ है मेरा. ये मेरी लाइफ की स्टोरी है. हर जगह अच्छी जगह घुसने के लिए 3 साल चाहिए होता है मुझे. आई एम स्लो, बट आई एम ए मिलियनेयर राइट नाउ, and I'm going to be a billionaire very soon. इतनी कोई रेस नहीं है. खुद के स्ट्रेंथ्स पे काम करते करते पहुंच जाते हैं वहां पे. And what's a leadership mistake you made early on? हर रोज ही एक मिस्टेक करते हैं, बट लेटली जो मिस्टेक दैट आई एम अ वेरी एग्रेसिव लीडर, एग्रेसिव एंड पुशी लीडर. एंड व्हेन यू आर स्केलिंग अ कंपनी, जैसे इन्होंने बताया 90% ऑफ द कंपनीज फेल, 10% स्केल 1 year, अगेन 10% में आना है आपको नेक्स्ट ईयर. ऐसे करते करते 750 लोग हो गए हैं. अभी 750 लोगों को मोटिवेट कैसे करें? आप लोगों को तो हर रोज ज़्यादा चाहिए. यू हैव टू गिव ऑल योर वर्क टू देम. when they make mistakes, you have to accept them, and you cannot be very pushy. I go to a meeting and I push my team, and then I see their faces frown and go small, and then I realize, but hell, I made a mistake. Then I have to step back, make the environment cheerful. रोज ही मिस्टेक होती है. Sir, now it's time for the Q&A from the audience. Share the question, tell me. You can sit and talk, save time. My name is Charvi Kashyap. I am pursuing AI and engineering from Bombay IIT. So I was looking for understanding how AI is shaping cybersecurity environment. And I think it's, as you mentioned as well in your conversation, that every country needs cybersecurity and AI enable and create systems that help with people. Now my question here is that you also talked about opportunities. So there is a lot of opportunity. In Bombay, there are around 100. So how do we ideas students or a person filter out which are useful and practical to shape our students probably not with themselves? रोबोटिक्स एंड एआई का मिक्सचर जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है. ऐसी कोई कंपनी हो जो रोबोटिक्स एंड एआई के मिक्स में काम कर रहा है, वो तो सुपर सॉलिड है. उसके अलावा एआई के रैपर्स जो बना रहे हैं वो भी कोई ख़राब नहीं है. जिन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग उठाई है और बहुत सारे मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हैं, I would be a little wary of them, but as a fresher, I would not be very too much. I'll just let life guide me. जहाँ जॉब लग रही है वहाँ जा सकते हो आप. And be open to learning. And learning क्या है कि learning सिर्फ white hair वालों से learning नहीं होता है. Learning तो क्या है, सबसे ज़्यादा as you grow, junior से ज़्यादा learn करना पड़ता है. क्योंकि वो आपको बता देते हैं कि where is the
wave right now and what the hell are you talking about? So वो ध्यान रखना पड़ता है. और AI is shaping cybersecurity in a big manner. All companies in the world are worried about cybersecurity of AI, meaning कि मेरा डेटा लॉस तो नहीं हो जाएगा. मैं CEO हूँ, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, उसने स्टोर कर लिया, मेरे किसी जूनियर एम्प्लॉय ने पूछ लिया, सारा डेटा निकल गया. वो उस तरह के 50 क्वेश्चन होते हैं. फाइन ग्रेन एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. LLM कहाँ का बना हुआ है, स्टोर कहाँ कर रहा है, जितना सोचो उतना. इतने सारे टूल्स हैं जो रैपर्स हैं अराउंड LLMs फॉर फास्टर कोडिंग एंड ऑल. कैसे प्राइसिंग कर रखी है उन्होंने उनकी टोकन वाइज. इट्स वेरी हार्ड टू ऑप्टिमाइज. कुछ ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं. लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. कीप योर आई ओपन फॉर एनी कॉन्फ्रेंसेस. टेक टाइम, especially on weekends. Take time to go there. Right, so that's very, very important. And then finally, like, let life guide you. So it'll happen. Come to Pune for a conference. It'll be very good. You should. It'll be good. We are very passionate about cybersecurity education. Unfortunately, in India is very elitist. जितने भी conferences है ना, 18,000 की टिकट, 20,000 की टिकट, स्टूडेंट तो नहीं आएंगे. हमने शुरू किया था 200, 300, 100 रुपये से. क्या हुआ? आप लोग बहुत 100-200 रुपये की टिकट खरीदते आते नहीं हो, तो हमें को पता लगा इतने इतने कम नहीं ले सकते आपसे, तो थोड़ा सा बढ़ाया. बट हमारे वी आर ट्राइंग टू मेक साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन इंक्लूसिव. I feel 2 million engineers are needed in cybersecurity space, and India will get there because India is the only country which can get there because of so many students. So then you should keep your eyes open for the conference like this. Learn, network, and just follow your passion, I guess. Cool. Yes. I said Shivam Piksha. सुपर चीज सिविल इंजीनियरिंग NIT सूरत. तो मेरा ये क्वेश्चन था, आपके जैसे आप एक नॉर्मल से कॉलेज में गो थे, तो आपसे जैसे जो इंडिया के आप टॉप इंस्टीट्यूट IIT NITs में कुछ स्टूडेंट्स हो गए, वो मे बी आपसे बेटर वैल्यू दे सकते थे उनका कंपनीज को. तो आपने कैसे ये वैल्यू सीखी? तो आप उनसे जैसे MIT वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज में जो साइबर सिक्योरिटी में आप शायद थोड़ा ज़्यादा उनको लर्निंग होगा बिकॉज दे आर टॉप इंस्टीट्यूट. तो आपने कैसे कॉम्पीट किया? जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग में हूँ, NIT सूरत में हूँ, तो मैं एक इमर्जिंग कंस्ट्रक्शन पे रिसर्च पढ़ रहा हूँ, कैसे उसमें ओनरशिप कर सकता हूँ मैं. तो इवन दे आर टॉप और टॉप इंस्टीट्यूट पे तो वो भी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, और मैं कैसे उनमें कॉम्पीट कर सकता हूँ? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. मैं खुद ही सोच चक्कर में पड़ा रहता हूँ कि मैंने बोला ना, हर जगह जाने के लिए 3 साल चाहिए मुझे एंट्री करने के लिए. तो ऐसा स्लो स्टूडेंट कैसे एक कंपनी का CEO बन गया. एंड अभी आई थिंक माई ट्रैक ट्रेजेक्टरी इज गोइंग अप राइट नाउ. सो आई माई सेल्फ आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज अबाउट दिस. सो बट कैसे हुआ ये आई डोंट नो, बट आई फील लाइक देयर आर कपल ऑफ एंगल्स टू दिस आंसर. वन इज वी ऑल नो फर्स्ट ग्रेड में कौन टॉपर था, 5th में कौन टॉपर था, 10th में कौन टॉपर था, 12th में कौन टॉपर था. सब अलग अलग थे ना. जिस दिन तुमने ठान ली कि मैं IIT हूँ आज से, उस दिन से तुम IIT हो. उसके बाद तुम्हें IIT की तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी IT एंट्रेंस के लिए. एक तो वो हो गया एंगल. दूसरा एंगल ये है कि आर यू एबल टू डेवलप अ गट फील एंड लर्न फ्रॉम एवरीथिंग. एंड लर्न मतलब अभी कुछ गलती दिख रही है, तुम्हारा खास दोस्त से कर रहा है, तो उसी को बाहर करना पड़ेगा. करोगे गट फील को फॉलो, गट फील डेवलप करना. एक तो खुद की अगर कोई फीडबैक दे रहा है उसको सुनना, मानना, उस पर इम्प्लीमेंट करना, उससे कंपटीशन हो जाएगा. एंड वर्ल्ड इज हंग्री फॉर गुड वेंडर्स. वर्ल्ड इज टायर्ड ऑफ बिग वेंडर्स. वर्ल्ड इज टायर्ड ऑफ Oracle एंड ऑल ऑफ दैट. वर्ल्ड इज हंग्री. अभी मैं पिछले वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठा हुआ था, उसने बोला मुझे, मैं उसको बोला था कि तुमने एक छोटी सी कंपनी थी प्राइवेसी की, 4 जन की कंपनी है, उसका प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल कर रहे हो HDFC में, कैसे कर लिया? उसने कहा तुम्हें पता है HDFC में बड़े प्रोडक्ट्स लेते हैं और छोटी कंपनी इंक्यूबेशन का एक स्पेशल ग्रुप है जो सिर्फ छोटी कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, क्योंकि उनके इतने कटिंग एज होते हैं. वर्ल्ड इज हंग्री फॉर स्मॉल वेंडर्स. सबसे पहले तो तुम्हें बड़े कंपनी का एक्सपीरियंस ले रहे हो तो बड़े कंपनी का ले सकते हो, छोटी कंपनी में. अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ बहुत मजेदार. मर्सिडीज की कॉस्ट ज्यादा है कि XUV, महिंद्रा XUV की? तो मर्सिडीज कॉस्ट ज्यादा है, बहुत सिंपल सी बात है. तो इंडिया में मर्सिडीज का प्रॉफिट ज्यादा है कि XUV का? कमाल है ना. तुम्हें सिर्फ अपना कस्टमर पकड़ना, तुम्हें मर्सिडीज का कस्टमर थोड़ी पकड़ना.
मर्सिडीज तो 100 बिकी, एक्सयूवी बिक गई 1000। इसका प्रॉफिट था 10 लाख, उसका था जो भी 25 लाख। कर लो मल्टीप्लाई, स्केल भी तो एक चीज होती है। तो तुम्हें सिर्फ अपना कस्टमर पकड़ना है, तुम्हें compete नहीं करना है। अगर compete करोगे तो पीछे हो जाओगे उनके। मैं आजकल अपनी टीम को 25 बार बोलता रहता हूँ कि कॉम्पिटिटर का साइड ही नहीं देखना अपने को दिमाग में जो आ रहा है थॉट उसको इम्प्लीमेंट करके चलो, और कस्टमर से फीडबैक लेते रहो कि वो ठीक है कि नहीं। Does that answer a little bit? अपनी टारगेटिंग कस्टमर फोकस करना रहते थे, टॉप कंपनीज कॉम्पिटिटर। जो सोशल मीडिया फीड या फिर न्यूज़पेपर जो बता रहा है, और जो आपको अभी हमारे साथ क्या हुआ, मेरी कंपनी डूब गई थी 2012 में, चालू करी 2015 में डूब गई, सब भाग गए। सर्विसेज थे ना वो। 2015 में हमने एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया, समझे। अपने कस्टमर को पकड़ो और उसको चलते रहो धीरे 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 धीरे, और अपने एक्सपेंसेस कम रखो। अगर तुम्हारे स्किल्स इतने हाई हैं और एक्सपेंसेस जीरो हैं, यू आर डेडली। Every company in the world is seeking smaller vendors. If you can create one, companies, everyone will be thanking you. Government will thank you. अरे वाह, आपने जॉब कर दिया है ऐसे, और आप बैठे होंगे यहाँ पे 10-20 साल में। Thank you. Okay. Yes. One question is from my starting is might be easy now because it might be possible, but execution is a tough because जैसा आपने कहा कि 100 कंपनी स्टार्ट होती है, 90 फेल होती है, 95 होती है वैसे तो, 99 होती है मेरे ख्याल से तो, बट we should remember when we execute how to मतलब execution का base किस है। अगर आपकी कंपनी है तो सबसे कचरा काम वाला काम आपको करना पड़ेगा। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी चालू करी, पर किसी को ताला खोलना है सुबह का, ऑफिस का ताला घुसेंगे कैसे 4 जने, वो कौन है? आप। मेरी कंपनी थोड़ी है, आपकी है। मेरी तो बढ़ गई है अभी, तो मेरे को दूसरा खोल देता है आप। और साफ सफाई कौन करवाएगा या करेगा? और वो 4 जनों की सैलरी कौन देगा महीने के अंत में? और वो खाना खाएंगे कहाँ खाएंगे? आप ही फिगर आउट करोगे कहाँ खाएंगे। ऑफिस में बैठ के खा लेंगे क्या? कैंटीन के पैसे खर्च करोगे इंडिया में? नो 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 नो, पटाना पड़ेगा उनको, गली में खा लो यार, उठ के ऐसे बैठ के खा लो। ऐसे किया हमने। वो गौरव सामने बैठा हुआ इज लाफिंग। 5th person in the miniOrange. Yes, please. We are building a product which is AI based, but it is integrated with WhatsApp. Okay. We are collecting heavily personal identification information. So although we have to get the data stored in like encrypted database and all, we are still using some original LLM model. What are the 3 key things which we should focus on so that the customer is not hesitate to, let's say, come on our platform and then they go like. Are you using your own product? Now, are you using it? Yeah, I'm using it. I'm trying to understand it. See, that I'm in cybersecurity for so long. It is not about if your product is going to get hacked and if customers would trust you. Every product in the world gets hacked. नामी गिरामी कंपनी है, सबसे पहले जो सिक्योरिटी टोकन्स थे वो रोबोट्स बनाते थे बहुत हेवीली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में, वो भी हैक हो गए थे नॉर्थ कोरियन या चाइनीज हैकर्स से। एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट कहते हैं उसको। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। यूज योर प्रोडक्ट, हैव अ बग बाउंटी प्रोग्राम, हैव अ फ्री बग बाउंटी प्रोग्राम। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप उनको थैंक यू बोल दो जो आपके बग्स फाइंड कर रहे हैं। रेड टीमिंग ब्लू टीमिंग के कॉन्टेस्ट करवाइए, जो रेड टीमिंग वाले आपको बग्स निकाल के देंगे, ब्लू टीमिंग वाले फिक्स करेंगे धीरे धीरे। और एक अगर कस्टमर मिल गया, एक उसको वैल्यू दिखाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। और प्रोडक्ट कंपनी बनानी है तो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव गॉटन इन द फर्स्ट ईयर, इट्स वेदर द कस्टमर इज यूजिंग द प्रोडक्ट एंड सेकेंड ईयर का रिन्यूअल कर रहा है कि नहीं। वो रिन्यूअल के पैसे टाइम पे दे रहा है खुश होके, या बोल रहा है कि बकवास था, काम में नहीं आया, मैं तो यूज में नहीं लिया। When you get the first customer, if you already have the first customer, make sure high value to that customer. वो खुद ही जाके 10 जन को बताएगा कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। इंडियन कंपनीज का स्टाइल भी वही है। अमेरिकन कंपनीज का स्टाइल है मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड ऑन मार्केटिंग, और इंडियन कंपनी का स्टाइल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते जाओ, वर्ड ऑफ माउथ।
सबसे इजी मार्केटिंग वे होता है, और क्या जल्दी किस बात की है? लेट्स बी इंडियन. And this is the last question. Okay. मैं बाहर खड़ा हूँगा, आपको अगर क्वेश्चन पूछना मुझे आप बाहर पूछ लेना आप. My name is Satyam. I'm very young and I want to ask, what does More skills meaning, are you in science, commerce? More skills. कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कैसे आंसर करूं? मोर स्किल्स मतलब यू हैव टू बी पेशेंट. Every student has to be patient, and every student has to learn. Be open to learning. 11th grade is far too soon. I'm glad you're here. There is no rush. So कोई रेस नहीं लग रही है कि आपको दूसरे 11th. I was a very average 11th grader and 12th grader, and I've reached somewhere in life. So be patient and be eager to learn. जब आप 12th ग्रेड में टॉपर कर लोगे ना, जब बन जाओगे, उसके बाद भी फर्स्ट ईयर में आप सबसे जूनियर मोस्ट होगे, वहाँ भी सीखना है. तो थोड़ा इट इज़ अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट. धीरे 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 अपने पेस से करो. दैट्स द here today? What starting your fight? Talk about the issue. I'll do a lot of things differently. I'll first stop blaming others for all my mistakes. I would be the MD of, and all of you would know me. Because मेरा क्या था, जब तक वो पहली कंपनी में ये खराब है, दूसरी में ये खराब है, 6 कंपनी को खराब करके जब मैं खुद की कंपनी में फंस गया, अब कौन खराब है? मैं ही खराब हूँ. अब तो मेरी कंपनी, अब किसको खराब बताऊँ? जब तक मैंने वो नहीं बंद किया, तब तक मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ. So that's what I would do very, very differently. Everything is all your choices. Okay. Thank you. Thank you. I have a question. Sir, here. Yes, tell me, sir. I have created a cybersecurity tool by using AI. My own name is Facing Fake Detector, teaching Facing Fake UI Detector. So how can I input this fake or up? What judges I can add? Fake URL detector. Very, very important tool, because इतना fraud हो रहा है. Thousands of crores of fraud is going on. उसमें fake URL detector अगर आपने बनाया अगर अच्छा बनता है, I think it's a very technical question. You should come out, talk to my team about it. Give us more details. I'll probably be able to give you some pointers. Good morning. Thank you for the questions. Okay, so on behalf of my Techfest team, I would like to sincerely thank Mr. Anirban Mukherji sir for sharing his valuable insights and experiences with us today, and Ms. Chinmaya Tripathi for moderating such an engaging and thoughtful session. Please give a round of applause to them. As a token of appreciation, I would like to invite a member of my team to kindly come on stage to present the memento to Anirban sir.